Morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter number 4, key elements of a democratic government. And today our topic is need to resolve conflicts. And this is our lecture number 3. So let's start. So our chapter name is key elements of a democratic government. So far, we studied about the story of South Africa, in which we studied South Africa is a country of several races, including African American people who belong to South Africa, the whites who came there to settle, Indians who came as laborers and traders, and so on. Earlier, the country was governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. The African people were divided into white, African American, Indian, and other races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, live near each other, or even use common facilities. The African National Congress, a group of people, led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela. Yes, Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. Finally, they succeed. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. Then next topic, we studied about the participation. So in which we study, student, okay, why do we have regular elections? It was already discussed in an earlier chapter that people make decisions in a democracy and people elect leaders to represent them via election. These leaders can also take decision on the behalf of people. Yes, students. So it is believed that these representatives will keep in mind the voice and the interest of the people. Every government is elected for a fixed period. In India, it is for 5 years, and every government that is elected is allowed to stay in power for only that period. However, if they want to continue to be in power, then they will have to be re-elected by people. So in this way, regular elections limit the power of the government. Then student, after that, we studied about other ways of participating, in which we studied that elections are held once every 5 years. Besides voting, people can participate in the process of government by taking an interest in its operation and criticizing it when required. For example, in August 2005, then the ruling government of the time increased the money people had to pay for electricity. They expressed their disapproval very sharply by taking rallies and organizing a signature campaign. Okay, and organizing a signature campaign. Even though the government tried to explain and defend their decision, they finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger.
So the next time we see a rally winding through the street of our city and the towns or villages, we should pause to find out what the rally is about. So, yes, students, so what the rally is about? Rally is about who is participating in it and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how government works. While it is true that democracy allows the people to participate, it is not all the section of people who are actually able to do so. So finding another ways to participate people organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community like the Dalits, Adivasis, women and other often participate in this manner if the people of a country are alert and interested in how the country is run, then the democratic character of the government is expected to be stronger. Okay, then we studied about the next topic that was need to resolve conflict. So it is seen that conflict can lead to violence and death when one group decides that it is all right to use force to prevent the other group for protesting. So conflicts arise when people of varied culture, religion, reason, or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent method to settle their differences, leading leading to fear and tension among other living in areas. So the government is responsible for resolving conflicts. So really, okay, students. So now today let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. So student, the Indian Constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. And these laws are for both the government, okay, are for both the government and the people. Conflicts and differences have to be resolved according to these laws. And we will read more about this in later classes. So student, यहाँ पर जो है आपके पास, अब हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग स्टडी कर रहे हो कि हमने ये अब हम कुछ एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर चलेंगे, दो एग्जांपल लेंगे और इस वाले पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बेसिक रूल्स और लॉज हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको कुछ बेसिक रूल्स एंड लॉज दिए गए हैं और ये जो लॉज हैं ये गवर्नमेंट और लोगों के लिए होते हैं, दोनों के लिए होते हैं ये, और सबको इनको फॉलो करना पड़ता है। तो कन्फ्लिक्ट्स कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स का क्या सोल्यूशन जो होता है वो इन्हीं लॉ के बेस पर होता है। ओके, so religious procession and celebrations can sometimes lead to a conflict. तो क्या होते हैं कि जो आपके जो रिलीजियस प्रोसेशन क्या हुआ स्टूडेंट, जो हम धर्म के धार्मिक जो जुलूस निकाले जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन, यानी जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, हमारे कोई त्योहार आते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कई बार हमारी कन्फ्लिक्ट्स का कारण बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूट अ प्रोसेशन takes may lead to a conflict.
जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हम ये रिलीजियस प्रोसेशन होते हैं वो किस रास्ते पर निकले, इसी इसी के ऊपर कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स का ये कारण बन जाती है कि किस रास्ते से, किस रूट से ये निकाला जाए। ठीक है, तो उसी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। द गवर्नमेंट particularly the police may play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्या होता है कि कई बार जैसे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि at times there is fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession। तो अब मैंने आपको बताया कि जैसे हम ये एग्जांपल देख रहे हैं कि जो हमारे रिलीजियस प्रोसेशन होते हैं वो किस रूट पर निकले, इसी पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण ये बन जाते हैं। कई बार वॉयलेंस होने का भी बहुत बड़ा खतरा बना रहता है कि इस वजह से, इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वॉयलेंस ना हो जाए। और कभी कभी ये प्रोसेशन के जो लोग होते हैं वो क्या होकर वो बड़े ही उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, और वो उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग इन प्रोसेशन पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, पार्टिकुलरली जो हमारी पुलिस है, वो ऐसे मौके पर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे मौके पर हमारी मेन जो पुलिस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये इंश्योर करना होता है कि आपस में इस तरह की कोई टकराव वाली स्थिति जो है वो यहाँ अराइज ना हो जाए या कोई हिंसा ना हो। ओके, द पुलिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वॉयलेंस डज नॉट टेक प्लेस। किसी तरह का वॉयलेंस ना हो, ये पुलिस को ही की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो ये पुलिस को देखना होता है ताकि और वो इसलिए देखती है क्योंकि अगर इस तरह का कुछ हो गया, मान लो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उससे वॉयलेंस होने का डर रहता है। तो ये मेन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमारी पुलिस की। ओके, सो वो सभी जितने भी सभी जो पक्ष होते हैं उनको एक जगह बिठाकर वो बात करवाती है ताकि इन कॉन्फ्लिक्ट्स का सलूशन निकाल सके। ओके, सो स्टूडेंट, rivers too can become a source of conflict between states। अभी तो हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे रिलीजियस प्रोसेशन है या जो हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉयलेंस का कारण बनते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और एग्जांपल, रिवर्स जो होती हैं, रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। जो रिवर्स होती हैं वो भी कई बार इन कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन जाती है। A river may begin in one state, flow through another, and the end in a third। अब एक जो कई बार कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक स्टेट से तो वो ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, एक से ओरिजिनेट हो रही है, दूसरी से बहकर जा रही है और तीसरे स्टेट में उनका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही रिवर कई सारे स्टेट से होकर भी बहती है। तो अब यहाँ पर कैसे कंप्लीट होगा कि द शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जिन स्टेट से ये रिवर पास आउट होती है, जो ये रिवर फ्लो करती हैं, उनके बीच में रिवर के वाटर को का जो बंटवारा है, शेयरिंग है। ठीक है, वाटर की शेयरिंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स बंद हो जाती हैं। बहुत बड़ा ये इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज हो जाते हैं इन रिवर्स के वाटर की शेयरिंग को लेकर। ओके, सो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, एक एग्जांपल दिखाएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप, कावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड। ओके, तो यह हमारे पास एक एग्जांपल दिया है आपके पास कावेरी वाटर का। तो इसका डिस्प्यूट देखते हैं कि इसमें क्या है।
Yes, student, look at this map. Kaveri Water Dispute Tribunal Road. So ये कंफ्लिक्ट, ये एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे अभी आपको पता है कि रिवर्स को लेकर भी कई बार कुछ स्टेट्स के बीच में क्या चल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है. सो यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में आपने शायद कभी सुना हो, इन दोनों के बीच में कावेरी वाटर के, जो कावेरी रिवर है उसके वाटर शेयरिंग को लेकर जो डिस्प्यूट इनके बीच में होता रहता है. ओके, सो यहाँ पर क्या है, द वाटर, जो कर्नाटका और ये तमिलनाडु है, यहाँ पर देखिए आपके ये जो कावेरी रिवर है, ये ठीक है, ये कावेरी रिवर फ्लो हो रहा है इसका, ये आपका कर्नाटका है, ठीक है, ये वाला स्टेट कर्नाटका और ये तमिलनाडु. और ये क्या है इसकी, ये कर्नाटका और तमिलनाडु के आपका का क्या है, ये बॉर्डर है. ओके, ये बॉर्डर है जो इनको एक दूसरे से अलग कर रही है. तो अब यहाँ पर देखिए, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, कावेरी रिवर कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रही है. ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज फॉर इरिगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु. अब ये देखिए, ये डैम है जो कौन सा डैम है यहाँ पर कर्नाटका में, कृष्णा राजा सागर. ओके, ये डैम बना हुआ है. तो यहाँ पर कर्नाटका से क्या होता है, जो ये कावेरी रिवर है, इसका कावेरी रिवर का वाटर इस डैम में इकट्ठा किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, जैसे कि इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके. और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बंगलोर है, ठीक है, बेंगलुरु है, इसकी वाटर की जो सप्लाई है, वाटर की प्रॉब्लम है, उसको भी इसी के द्वारा सॉल्व किया जाता है कावेरी रिवर से. ओके, सो अब यहाँ पर आपको वो क्या कह रहे हैं कि एक तो ये कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज फॉर इरिगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ये कर्नाटका में इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई होता है. एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु, और बेंगलुरु जो सिटी है कर्नाटका में, उसकी भी नीड को ये फुलफिल करता है. अब द वाटर स्टोर्ड इन मैटूर डैम इन तमिलनाडु. इसके बाद जब यहाँ से जब ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट कवर हो जाती हैं, उसके बाद फिर ये आगे पानी को छोड़ते हैं और ये आगे तमिलनाडु में जाता है. तमिलनाडु में यहाँ पर ये क्या है, मेटूर डैम. ओके, ये आपका मेटूर डैम बना हुआ है तमिलनाडु में. ओके, तो अब ये इसी कावेरी रिवर का जो ये वाटर है, वो तमिलनाडु में जो मेटूर डैम है, वहां पर इस पानी को स्टोर किया जाता है. द वाटर स्टोर इन मेटूर डैम इन तमिलनाडु इज यूज फॉर क्रॉप ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट. ठीक है, उस स्टेट के जो डेल्टा रीजन में जो क्रॉप ग्रोन के लिए इस वाटर को, मेटूर डैम में से इस वाटर को यूज किया जाता है. ओके, सो द कंफ्लिक्ट कहाँ आता है, so the conflict arises because both dams are on the same river. क्योंकि अब कंफ्लिक्ट कहाँ आया कि दोनों के दोनों डैम, जो ये कृष्णा राजा सागर है कर्नाटका में एंड मेटूर डैम है जो आपका तमिलनाडु में, ये दोनों एक ही रिवर के ऊपर हैं, एक ही रिवर पर हैं. So the downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो तमिलनाडु जो नीचे है, तमिलनाडु बाद में आता है, तो डाउनस्ट्रीम डैम जो है तमिलनाडु में, वो उसमें पानी केवल तभी फिल किया जा सकता है जब जो अपस्ट्रीम डैम है जो कर्नाटका में है लोकेटेड, वहां से अगर वाटर रिलीज होगा, ठीक है, छोड़ा जाएगा, तो ही तमिलनाडु के डाउनस्ट्रीम जो डैम है मेटूर डैम जो है उसमें ये फिल होगा. सो देयरफॉर बोथ स्टेट्स can't get as much water as they need for people in their states. तो इस तरीके से दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होता है. ठीक है, कि अब दोनों स्टेट हैं, उनको अपने लोगों की नीड के लिए पानी चाहिए, पूरा पानी चाहिए, जो कि उनको मिल नहीं पाता है दोनों को ही. सो देयरफॉर बोथ स्टेट कांट गेट as much water as they need for people in their state. So this lead to conflict. यही क्या होते हैं, इसी वजह से वहां पर कन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होते रहते हैं. कई बार ये वॉयलेंस का कारण भी बन जाते हैं, आगजनी भी हो जाती है वहां पर,
So the central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. इसीलिए जो हमारी क्या होती है, इस तरह का जब ये डिस्प्यूट इनके बीच में होता है, तब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेप उठाना पड़ता है ताकि दोनों स्टेट्स के लिए वोटर का सही तरीके से शेयरिंग हो पाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि कैसे हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, किसकी प्रॉब्लम कैसे जो है कोई भी कंफ्लिक्ट होते हैं उनको रिजोल्व किया जाता है, और गवर्नमेंट का उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट ही इस तरह के डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज equality and justice. So one of the key idea of a democratic government is its commitment to equality and justice. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो मेन उसके आइडियाज हैं, जो की आइडियाज हैं, उनमें से एक है उसका जस्टिस और इक्वालिटी के प्रति क्या होना, कमिटमेंट होना। वो इक्वालिटी और जस्टिस के प्रति जो गवर्नमेंट का, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट होता है कि वो हर किसी के बीच में इक्वालिटी रखेगी और जस्टिस होगा सबके साथ, तो ये कमिटमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की आइडिया है। तो इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंसेपरेबल। तो ये जो इक्वालिटी एंड जस्टिस है उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इंसेपरेबल मतलब एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते किसको। जहां इक्वालिटी है वहां जस्टिस है, और जहां जस्टिस है वहां इक्वालिटी है। So the earlier practice of untouchability is now banned by law. अब पहले एक क्या चलती थी, पहले एक अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस जो थी हमारी कंट्री के अंदर, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस पहले चला करती थी, जो अब हमारे लॉ के अकॉर्डिंग उसको बैन कर दिया गया है। सो अनटचेबिलिटी में क्या होता है, जिन लोगों को लोअर कास्ट का समझा जाता था उनको बहुत सी चीजों के लिए उनको बैन किया गया हुआ था। तो वो अनटचेबल कहे जाते थे। उनको अगर ये माना जाता था, जो अपने आप को अपर क्लास का समझते थे, उनको ये लगता था कि अगर हम इन लोगों को छू भी लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हमारी पहले चलती थी, जो अब लॉ के अकॉर्डिंग उसको बैन कर दिया गया है। So this group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayer. तो लंबे टाइम तक जो इस तरह के जो लोग होते थे, अनटचेबल जो लोग होते थे, इस ग्रुप के लोग होते थे, उनको एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज से उनको और भी दूसरे थे, जैसे इवन चांस टू ऑफर प्रेयर्स का ऑफर, ठीक है, मंदिर में जाना उनको अलाउड नहीं था। वो अच्छा, जो पब्लिक जो बोल होती थी उसमें से पानी पीना उनको अलाउड नहीं था। तो इस तरह के बहुत सारे उनके ऊपर बैन थे। So Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many other like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. तो हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर थे, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ा है आपने, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को इस जोर देकर ये कहा कि ये जो प्रैक्टिस थी ये क्या थी, ये अमानवीय है, ठीक है, मतलब इस तरह की प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए। और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों को एक साथ इक्वली उनको ट्रीट किया जाए। Okay, so the government also recognizes this and makes special provision for the group within society that are unequal. तो गवर्नमेंट भी इक्वालिटी और जस्टिस की जो जरूरत है उसको पहचानती है, और उन ग्रुप के लिए विशेष स्पेशल प्रोविजंस जो है वो प्रोविजन भी वो बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, in our society there is a general tendency to value and care for boy child मोर देन द गर्ल चाइल्ड। जैसे आप लोगों को पता ही है सबको कि हमारी सोसाइटी के अंदर आम ये प्रवृत्ति है कि लोग जो है ना, वो लड़कों की केयर के लिए, लड़कों की केयर जो है वो लड़कियों से ज्यादा करती हैं। ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर चलती रहती है।
So this means that society doesn't value the girl and boy child equally, and this is unjust. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सोसाइटी है वो गर्ल्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती जितना वो बॉयज को देती है. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट the government's in this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे विशेष प्रोविजन बनाए हैं जिससे कि इन गर्ल्स को अपने साथ होने वाले इनजस्टिस से छुटकारा पा सकेंगी वो. एंड thus it is possible that fee for girls might be way or lower in government schools or colleges. So जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उनमें गर्ल्स की फी या तो खत्म कर दी गई है या कम करने का प्रोविजन किया. Okay students, so now students this chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.